Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone joining us today for episode 11 of the IEEE SSUETY Special Ramzan Nexus Series 2.0. We are honored to bring you another insightful session dedicated to empowering and inspiring individuals, especially women, in their professional and personal journeys. My name is Eman Qasim, and I am serving as a lecturer at Said University Engineering Technology. In addition, I am also working as co-advisor of IEEE SSUETY. So today's webinar titled Pride and Prejudice, the Power of Possibility for Women, aims to shed light on the opportunities available for women, the importance of staying relevant in an ever-changing world, and the initiatives introduced by both government and private sectors to support women in business and employment. Now, let's talk about numbers. Women make up approximately 49% of Pakistan's population, yet their participation in the workforce remains significantly low. As of recent statistics, only around 22% of Pakistani women are part of the labor force. These women are engaged in both formal and informal sectors, ranging from corporate roles and entrepreneurship to home-based and freelance work. Despite policies aimed at increasing their participation, challenges such as lack of awareness, limited opportunities, and societal barriers continue to persist. Now, this raises some important questions. Are opportunities truly scarce, or is there a lack of awareness? Are women hesitant to step forward, or do they need better support structures? How can they equip themselves with knowledge and confidence to seize available opportunities? These are the critical aspects we will explore in today's session. Now I want to introduce my respected speakers for this webinar. Our first esteemed speaker is Dr. Muna Kanwal. She's a member of IEEE and she holds a PhD in computer science from NED University of Engineering Technology and has earned her BSc and MSc in computer engineering from SSUET, Pakistan. With vast experience in academia and industry, she has been served as a compliance and SQA manager at Mixed Technology and was a professor at Seneca College, Canada. Currently, she is an assistant professor at Ikra University, Karachi, and actively mentors projects and startups. She has received funding from the Ministry of Science and Technology, Pakistan, and a scholarship from the Higher Education Commission. Her research interests include machine learning, data science, human-computer interaction, and human behavior. Welcome, Dr. Muna. Thank you very much. Our second distinguished speaker is Dr. Ghazal Khwaja Humayun. She has over 20 years of experience in academia, research, and administration, holding a PhD in management and administrative sciences from the University of Karachi. She has authored numerous publications, participated in national and international conferences, and supervised multiple MPhil and PhD candidates. Additionally, she is an associate professor in the Department of Public Administration at the University of Karachi, a member of the National Curriculum Review Committee (NCRC) at HEC, and an active activist as a Rotary Club member. Welcome, Dr. Ghazal. Thank you. Now, let's begin today's discussion on pride and prejudice, the power of possibility for women. Why did we choose this topic? What does pride and prejudice mean in this context, Dr. Ghazal? Thank you very much, Eman Qasim, for a very good introduction and then arranging this webinar. First of all, during Ramzan, arranging such kind of activities, और फिर ये माशाल्लाह इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कॉरेस्पॉन्डिंग टीम होगी आपकी जिसने ये सब एफर्ट की है. तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में इस बात पे कंग्रेचुलेट करती हूँ. थैंक यू सो मच मैम. अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चन किया, दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. अच्छा, ये जनरली हम अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करें तो ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एन इक्वल एंजॉइंग द इक्वल सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल स्टेटस, बीइंग अ पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड with reference to men and women.
तो हमारी कोशिश या हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें बहैसियत वुमेन इक्वल सिर्बियल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली। अच्छा, जब हम कॉमन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं या इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारा SDG गोल भी आपके पास होगा, दैट इज द 5th गोल ऑफ SDG, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी। तो वहां पर हम ये चीज समझते हैं कि वुमेन को सोसाइटी में हर एतबार से, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलनी चाहिए। अच्छा, ये इक्वालिटी जो है वो क्यों नहीं है? आपने बड़ा अच्छा एक स्टैट्स अभी बताया था कि जी पाकिस्तान में 49% जो वर्किंग आपकी जो क्लास है या जो GDP जो आपका कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज अ वुमेन। तो हम Exactly. मैं इसको वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देख लूं तो मैं आपको बताती हूँ कि जी हम ये कह सकते हैं कि 50%, 49 और 50 में कोई खास फर्क नहीं है, तो 50% यानी कि हाफ ऑफ दी जो आपकी पॉपुलेशन है, दैट इज अ वुमेन, एंड दे आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इनटू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो Exactly. जो कंट्रीब्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि वो आपका जो है वो इस तरह का कंट्रीब्यूशन हो कि जी जिस तरह आपने स्टेम की बात की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या इस एतबार से या रिसर्च के एतबार से, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन का वो उसका केयर गिवर के पर्सपेक्टिव से है, उसका लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से है, उसका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन है। तो हर तरह का कंट्रीब्यूशन जो है वो एक वुमेन का 50% जो है हमारी वर्ल्ड की, वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, और वुमेन जो है वो एक इक्वल सोशल स्टेटस जो है वो इंजॉय करना चाहती हैं इस कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो इसलिए हम इसको प्राइड एंड प्रेजुडिस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी। अच्छा, हम इक्वल एम्पावरमेंट या इक्वालिटी की जब बात करते हैं, मैं 1 मिनट लूंगी और तो उसमें हम ये नहीं कहते कि जी हमें बायोलॉजिकली, देखो बायोलॉजिकली मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, ठीक है, Exactly. बायोलॉजिकल एम्पावरमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं कि जी हमें अगर एक मर्द जो है वो ये काम कर रहा है तो खातून भी ये कर सकती है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह है, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह है, बट कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड कि वी आर डिफरेंट, मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, लेकिन इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हुए हमें एक सोशल स्टेटस जो है वो इक्वल सोशल स्टेटस जो है वो एंजॉय करना है। तो ये है हमारा प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो है कॉन्सेप्ट है वो ये। Okay, Madam Mona, I want to ask, what does the power of possibility for women mean? What is the whole concept? अच्छा, पहले तो जो गजल ने आप लोगों की काविश को सराहा है, मैं उसमें सेकंड कर देती हूँ, क्योंकि नो डाउट इट इज अ गुड एफर्ट फ्रॉम योर टीम, और बहुत खुश उसलूबी से आप लोगों ने उसको लेके चले हैं। All the stages that happens when you are organizing an event, whether it is on site or whether it is in webinar. So congratulations for that, and I hope that आप इसकी पूरी सीरीज कंप्लीट करें और बहुत सक्सेसफुल रहे। So applaud for you and your team. अब आपने जो बात करी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ वुमेन, तो बेसिकली टाइटल के दो एस्पेक्ट्स थे। एक ये कि प्राइड और प्रेजुडिस। प्राइड ये कि वुमेन की अपनी जात में उसकी प्राइड इंपॉर्टेंट है, और वो प्राइड, जैसे कि डॉक्टर गजल ने कहा कि वो प्राइड ये है कि वो इक्वल स्टेटस जो है वो शेयर कर सके सोसाइटी के अंदर। जो स्टेटस बाकी जेंडर को मिल रहा है वो स्टेटस वुमेन होल्ड कर सकें इन टर्म्स ऑफ सोशल और कल्चरल, और उसमें प्रोफेशनल भी आ जाएगा। हर किस्म का जो भी कम्युनिटी के इनपुट्स हैं उनको वो एंजॉय करे। और प्रेजुडिस ये है कि वो नहीं हो रहा, तो जो उसकी लिमिटेशंस आ रही हैं वो प्रेजुडिस बन जाती हैं। तो एक तो ये पार्ट था जो कि जिसके ऊपर वी वर टॉकिंग अबाउट इट एंड गजल ऑलरेडी इनिशिएटेड अबाउट इट। और फिर आती है बात कि अच्छा ये हो रहा है ना सब, we are living in a world where there is injustice, where there is inequality तो है और बहुत ज्यादा भी है। The point is कि possibilities क्या है फिर। So देखिए, अपॉर्चुनिटी की एक डेफिनेशन लिटरली आप जब सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगी
कि अपॉर्चुनिटीज जो है ना, उसका 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 लिटरल मीनिंग क्या है कि एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ इवेंट और एनीथिंग दैट एलिविएट्स वन सेल्फ, जहां से आपको एलिविएशन मिल सके, जैसे कि आपको अपनी किसी भी तरह से अपने आप को एनहांस करने का मौका मिले, वो अपॉर्चुनिटी है। तो अब पॉसिबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है विमेन के लिए? तो पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, ज्यादातर जब हम बात करते हैं तो विमेन लेती हैं इसको कि पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जी मुझे करियर की ग्रोथ चाहिए, या मैं करियर में आगे बढ़ूं, या मैं करियर ओरिएंटेड बन सकूं, मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सके, मैं तब मैं पैसे कमा सकूं, या ये कि मैं जो हूँ वो एजुकेशन हासिल कर रही हूँ तो मैं हायर एजुकेशन की तरफ चली जाऊं। बट व्हाट इज बियॉन्ड दैट, लाइक व्हाट इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस? तो पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि आपका विजन इतना बड़ा हो कि वो अकोमोडेट कर सके वो सारी पॉसिबिलिटीज को जो कि एक एज अ ह्यूमन आप एक्वायर कर सके, चाहे अपनी सेल्फ एनहांसमेंट के लिए, चाहे वो करियर की तरफ लीड करे, चाहे एजुकेशन की तरफ लीड करे, चाहे लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने में हो, चाहे अपनी सेल्फ हेल्थ को बेटर बनाने के लिए हो, चाहे वो अपने आने वाली नस्ल को बेटर बनाने के लिए हो, किसी भी हवाले से जो भी आप सेल्फ एनहांसमेंट कर रहे हैं करें और करनी चाहिए, वो आपकी बनेंगी पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटी का दरवाजा नैरो नहीं होना चाहिए, बहुत वाइड होना चाहिए कि उसमें हर चीज आ जाए और हर काम आ जाए। जरूरी नहीं है कि हर काम का आउटपुट जो है वो रिजल्ट एक मनी की सूरत में मिले, वो पर्सनल खुशी की सूरत में भी मिल सकता है। जैसे कि आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप गार्डनिंग के मुतालिक कोई कोर्स कर रहे हैं, सो पर्सनल खुशी के लिए कर रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विथ लाइक एनहांसिंग योर करियर। सो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी वजूद को पहचानना, जैसे हम कहते हैं कि मेरी एक एग्जिस्टेंस है और मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे रेलेवेंट होना चाहिए, मुझे इस दुनिया का पता होना चाहिए, मुझे इस वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है पता होना चाहिए, मैं अपने साइलोस में ना रहूं, मैं कनेक्टेड रहूं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग जस्ट गो एंड फोकस ऑन द करियर पाथवे, जरूरी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी खवातीन इवेंचुअली क्या होता है कि वो घर में चली जाती हैं, फिर वो घर बच्चे इनमें पड़ती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। बट जिंदगी खत्म वो खुद कर रहे हैं बाउंड्री लगा के कि नहीं, बात वही था, बात कुछ भी हो सकता है, you can change, you can adapt. So that's the possibility that I want to talk about. My next question is to Dr. Ghazal and Dr. Mona, aap dono se. What inspired you to pursue a career in your respective fields, and what challenges did you face as a woman? क्या problems आई आपको, क्या hurdles आए, कौन से barriers थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको कह सकते तंग किया आपके लिए, आपकी करियर लाइफ में? तो पहले डॉक्टर गजल आप बताइए। गॉड, आप 20 साल पीछे ले गए इस सवाल के साथ हमें कि किस तरह से इस प्रोफेशन में आए। और फिर अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, आई वांटेड टू बी अ टीचर। ठीक है, मुझे टीचिंग करियर और टीचर का एक पैशन था। अच्छा, पैशन इसलिए था, कुछ लोग मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग से आपसे चीज शेयर करती हूँ। कुछ लोग एक स्टिग्मा अटैच है टीचिंग के साथ। लोग कहते हैं कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है। मैंने इस स्टिग्मा का हमेशा से ये जवाब दिया है कि जो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि जिस तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कल्चर बड़ा मुख्तलिफ होता है। यू हैव टू फॉलो and the roadmap and the guideline provided to you by the corporate society and everything. लेकिन जब आप टीचर होते हैं तो you are master of your own. So you have an opportunity to conduct a research. You have an opportunity to design your teaching methodology, the way you wanted to implement the curriculum. ठीक है, तो आपकी हर लीडरशिप, आपकी हर चीज आपके अपने हाथ में रहती है। तो आपकी टीचिंग आपके हाथ में है, आपका रिसर्च एरिया आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये समझा कि जिसको कुछ नहीं आता या जिसको कुछ नहीं करना होता वो टीचर बन जाता है, नहीं, बल्कि जिसको अपनी मर्जी से कुछ करना होता है वो टीचर बनता है। तो मैंने इसको हमेशा से यूं समझा और मैंने इसीलिए टीचिंग करियर को ऑप्ट किया।
यूनिवर्सिटी टीचिंग में के हवाले से मैं आपको बताऊं, क्योंकि शुरू से मेरा हायर एजुकेशन टीचिंग में ही एक्सपीरियंस रहा है, तो सिंस बिगनिंग मैं एक चीज ये समझती हूँ कि एक टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर जो है, उसका जो लाइफ स्पेयर है उसके 4 जो है वो ब्लॉक्स है। उसका जो पहला ब्लॉक आता है वो है उसका प्राइम टीचिंग, फिर आता है उसका रिसर्च, तीसरे पर आता है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड क्वालिटीज को एनहांस करना, और फोर्थ एंगल है उसका सोसाइटल कंट्रीब्यूशन या एक एक्टिविज्म जो कि वो सोसाइटी में एज अ सिविल सोसाइटी मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी टीचर के हवाले से मैं कहूंगी कि उसकी लाइफ के 4 जो हैं वो स्टेजेस हैं। जब हम करियर स्टार्ट करते हैं तो हम स्टेज 1 पर होते हैं, जब हमने टीचिंग करनी है, फिर हम उसको रिसर्च में चेंज करते हैं, रिसर्च की तरफ ज्यादा आ जाते हैं, फिर वक्त गुजरने के साथ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू वर्क फॉर एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ सिविल सोसाइटी, क्योंकि फिर हम पे जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये है एक टीचिंग करियर मेरी नजर में, जिसकी वजह से मैंने टीचिंग करियर को चूज किया, सेलेक्ट किया, एंड आई एम अ टीचर ऑफ हायर एजुकेशन सिंस लास्ट 20+ years। अब आपने पूछा चैलेंजेस, तो एक टीचर की लाइफ में इन 4 फेजेस में मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस रहते हैं, और बीइंग अ वुमेन हमारे चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं एज वी ग्रो। जब हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होते हैं तो वी फेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैलेंज, बिकॉज बीइंग अ वुमेन वी माइट फेस सर्टेन चैलेंजेस इनसाइड द क्लासरूम्स, क्योंकि जी हमारे पास जो है वो आप ये समझिए कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपनी पसंद के कोर्सेज का मिलना, ये तमाम चीजें हमने शुरू में बड़ा फेस करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ खवातीन जो होती हैं वो सिर्फ टीचिंग तक रह जाती हैं, वो अपने आप को रिसर्च की तरफ नहीं लेकर आती इस करियर में रहते हुए भी, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड रॉन्ग। इफ यू सेलेक्ट दिस करियर एज अ टीचर, यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ एज अ रिसर्चर आफ्टर अ टीचर। फिर हम रिसर्च की तरफ आते हैं, तो रिसर्च के अंदर भी हम, क्योंकि सोशल साइंस के एतबार से मैं बात करूंगी, तो बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट हमें जो रिसर्च, जो फील्ड रिसर्च करनी होती है, वहां पर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते हैं। हमारे डेटा कलेक्शन के हवाले से, हमें रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के हवाले से, तो वी आर नॉट कंडक्टिंग अ लैब रिसर्च, वी आर कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन अ सोसाइटी। तो सोसाइटल एस्पेक्ट पे हमें काफी सारे चैलेंजेस उस एतबार से फेस करने पड़ते हैं। कुछ खवातीन को, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वुमेन जो है वो एक केयर गिवर भी है, जिसमें उसके बच्चे भी हैं, पर्सनल लाइफ भी है, हस्बैंड भी है, एजेड पेरेंट्स भी हैं जो कि उसकी जिम्मेदारी है। तो इन तमाम चीजों को मैनेज करते हुए फिर ग्राउंड पे जाके रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना, फिर बहुत सारे हर्डल्स आप इस एतबार से फेस करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, एक करियर ग्रोथ होती है हमारी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, बीइंग अ वुमेन समटाइम वी आर नॉट ऑफर्ड a specific kind of a position in an administration. So we face certain challenges at that point also. और फिर eventually we turn as a activist or a civil society member. तो वहां पर हमारा contribution again, हमारी जो भी जिम्मेदारियां वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं as a woman, as a female, जो कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मर्द हजरात को being a teacher ऐसा कोई कुछ ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता किसी भी करियर में, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो या टीचिंग करियर हो। और जो कि मैंने विटनेस किया अपने इन काफी सारे सालों में, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जाकर आपको कोई ना कोई एक आपके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको बायसनेस का आपको कहीं ना कहीं शिकार किया जाता है। तो दिस इज ऑल माय जर्नी ऑफ लास्ट 20 years बीइंग अ टीचर एंड देन बीइंग अ रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन अ सिविल सोसाइटी मेंबर। ग्रेट, वेरी इंस्पायरिंग। मैडम मुना, आप भी जरा बताइए कि आपको क्या चैलेंजेस आए और क्या हर्डल्स थे? डॉक्टर हाँ, अच्छा, मेरा ना चार मेरे ना कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में रखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये रखा है एम, बट अगर ना मिले ना तो रिग्रेट नहीं करो। सो आई डोंट रिग्रेट, आई हैव नेवर रिग्रेटेड इन माय लाइफ कि मुझे इस चीज का शौक था मगर मुझे वो चीज नहीं मिली, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वो चैलेंज में आ जाएगा। चैलेंज की वजह से wasn't able to work some place जो मुझे जाना चाहिए था, मगर मैंने रिग्रेट नहीं करा। आई चेंज डायरेक्शंस। दूसरी चीज, अडेप्ट टू द चेंज, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड।
सो आई हैव ऑलवेज अडेप्टेड टू मेनी थिंग्स. तो इंट्रोडक्शन में आपने मेरी आधी स्टोरी बताई है, मेरी आधी स्टोरी नहीं बताई. मैंने बहुत सारे काम किए हैं, तो वो बताती हूँ मैं आप लोगों को. फिर तीसरी चीज जो मैंने हमेशा रखी है कि पॉसिबिलिटीज, जो मेरा टॉपिक भी इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि मैं आई हैव वर्कड ऑन इट. पॉसिबिलिटी, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड की हूँ, मगर मैंने वो काम भी करे हैं जो इसका कोई ताल्लुक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से नहीं है. जैसे मैंने इवेंट मैनेजमेंट भी किया है, तो मैंने शादियों की मैनेजमेंट भी की है, मैंने बर्थडे पार्टी की मैनेजमेंट भी की है, और मैंने कंपनी भी कोशिश करी थी रन करने की. टर्न आउट आइडिया वाज फ्लॉप्ड, बट बिल्कुल ही टोटली अलग किया है. मैंने एनजीओ पे भी काम किए हैं, मैंने एनजीओ खड़ा करने की भी कोशिश की है, विमेन के हवाले से भी करी हैं, 2 दफा की हैं, और एक एंटरप्रेन्योर ऑन ग्रास रूट लेवल के हवाले से भी किया है. सो मैं ना लाइक पॉसिबिलिटी का मतलब यही है कि भाई लुक फॉर अपॉर्चुनिटी. जरूरी थोड़ी है कि वो आप ही के अपने ही पाथ पे मिलेगी, कहीं और भी मिल सकती है, तो ट्राई जरूर करना चाहिए. तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मुझे हमेशा से जाना था सॉफ्टवेयर हाउस में, क्योंकि मैं प्रोग्रामर थी, तो मैंने सोचा चलो सॉफ्टवेयर हाउस में चलते हैं. मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा दौर वो दौर था जिसमें 9/11 हो गया, तो हमारी सारी आईटी फर्म्स ही बंद हो गई जब हम पास आउट हुए. 2001 की बात है वो. तो अब जॉब ही नहीं थी मार्केट के अंदर. अच्छा, अब यहाँ पे वो चैलेंज आता है कि जब जॉब नहीं होती है तो प्रायोरिटी किनको मिलती है? ज़ाहिर मैन को मिलती है. आई नेवर रिग्रेटेड ऑन इट. व्हाई? बिकॉज ठीक है, मैन आर ब्रेड अर्नर्स. तो फिर मैंने सोचा यार क्या करें, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई लेक्चर सर सैयद ने ऑफर किया. आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट पोजीशन सर सैयद में थी, तो मुझे वो ऑफर पहले ऑटोमेटिकली मिला करती थी. तो चांसलर ने मुझे ऑफर करी, तो आई ग्रैब्ड इट. तो भाई कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर, तो मैंने ग्रैब कर लिया. अच्छा, पढ़ाने का शौक हमेशा से था, पूरे 4 साल बैचलर्स लाइफ में मैंने पढ़ाया ही है. सो पढ़ाना वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, तो आई स्टार्टेड टीचिंग. सो दैट स्टार्टेड माय एकेडमिक करियर. आई एंजॉयड इट thoroughly, I enjoyed it. बट फिर कीड़ा तो था, वो जो था कि भाई किसी तरह से यार सॉफ्टवेयर हाउस में इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो फिर कीड़ा रहेगा. जो डॉक्टर गजल ने बात करी कि वो रिसर्च की तरफ जाना चाहिए था, मेरा रिसर्च की तरफ नहीं गया वो कीड़ा, मेरा गया इंडस्ट्री की तरफ दोबारा. तो मैं फिर पिंग किया, फिर एक अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने वो फिर अपॉर्चुनिटी ग्रैब की. अच्छा, इनिशियली अपॉर्चुनिटी जब मिली थी मुझे, तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो रिलक्टेंट थे, इतनी दूर जाना है, इतनी रात हुआ करेगी, ये चैलेंज. तो अब मैं इसको लेके मुंह बसोड़ के रहती, तो मुझे ये लगा कि अडेप्ट कर लेना चाहिए. वो भी ठीक है, उनकी भी अपनी जो वो सोच रहे हैं, वो उनके अपने डिलेमास हैं, जो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं. दे आर नॉट trying to hinder me, they're just trying to be protective of me. I understood that. तो इसलिए फिर वो कीड़ा फिर आया. जब वो कीड़ा फिर आया तो मैंने फिर सोचा चलो यार अभी 10 साल हो गए, अभी फिर जाके पेरेंट्स से बात करते हैं. Fortunately I got the permission. बड़ी हो गई होंगी शायद मैं, तो मुझे मिल गया, मैं घुस गई. तो I was a compliance manager in Mixit for a year. अच्छा, ईयर इसलिए कहूंगी क्योंकि मुझे ना मैनेज करना, अभी आगे जो एक आएगा ना वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया. बिकॉज आई यूज्ड टू कम इन लेट, और फिर घर का काम होते थे या पेरेंट थे, तो इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर मी. तो मैंने ये सोचा कि यार ज्यादा बेहतर ये है कि दिस इज गेटिंग रियली हार्ड फॉर मी एंड फॉर माई पेरेंट. सो देन 1 साल बाद मैंने वो जॉब खत्म करी, मैं दोबारा से सैयद आई. फिर कीड़ा यहाँ नहीं रुका, फिर चेंज किया. मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं. तो फिर मेरे मेंटोर एक होते हैं, मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है. ही इज नॉट रिलेटेड टू माय इंजीनियरिंग डोमेन, ही इज पावर सेक्टर. तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा तुम कंपनी खोल सकती हो, यानी सॉफ्टवेयर हाउस एस्टैब्लिश कर सकती हो. पहले भी सवाल पूछा था, मैंने उस वक्त मना किया था कि मुझे पता नहीं है कैसे करना है. अभी मुझे पता चल गया कैसे करना है, तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर दिया. मैं घर में थी, तो मैं घर में पेरेंट भी था, एकेडमिक्स भी चल रहा था. मैंने फिर आई स्टार्टेड आउट माय सॉफ्टवेयर हाउस. आई रैन दैट सॉफ्टवेयर हाउस फॉर लाइक 10 years. और मैंने अच्छा करा काम, बहुत सीखने को मिला. मगर फिर वो चैलेंज आ गए, बहुत सारी जगहों के ऊपर मैं जा नहीं सकती थी, मुश्किलात आ जाती थी, या ये कि लेट सिटिंग्स नहीं कर सकती थी. मैंने ऑफिस भी स्टैब्लिश किया था शारा फैसल पे, बट आई कुडंट. फिर वो क्लोज डाउन किया. मगर आई हैड अ गुड लर्निंग. स्टिल क्लाइंट से मीटअप करना, रिमोट चाहे करूं या ऑन साइट जाके करूं, बट आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन दोस 10 years, और लिटरली वर्कोहॉलिकली काम किया. उसके बाद फिर ये आया. अच्छा, फिर ये हुआ कि चूंकि मैं एकेडमिक्स में हूँ, तो इवेंचुअली रिसर्च तो कहीं ना कहीं से निकलनी थी.
डॉक्टर गजल से मेरे अच्छे मराज से मैं 4 बातें इन्होंने भी कह चुकी थी मुझे कि भाई खुदा के लिए पीएचडी कर लो, मास्टर्स में कर चुकी थी। तो फिर मुझे ख्याल आया अच्छा पीएचडी करना चाहिए, तो मैंने पीएचडी में एडमिशन लेना शुरू किया। फिर मेरे कीड़े बड़े हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं टेक्नोलॉजी में नहीं करूंगी, मैं एप्लीकेशन एरिया में करूंगी। तो मैंने एनटीएस का टेस्ट एजुकेशन में दिया, और देने के बाद मैं जगह जगह फिरी, किसी ने मुझे नहीं लिया, सबने मुझे मना कर दिया कि नहीं ले सकते, आप टेक्नोलॉजी किया, टेक्नोलॉजी में करें। तो मैं ठप होके बैठ गई। फिर मैंने कहा अच्छा अब क्या करूं। फिर मुझे मेरे मेंटोर ने बोला कि तुम कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती। तो मैंने कहा यार मुझे यहाँ गली के नुक्कड़ पे तो भेजते नहीं है मेरे अम्मा अब्बा, अब कह रही हैं आप कनाडा भेजेंगे, हो ही ना जाएगा ऐसा। तो उन्होंने बोला बाय, यहाँ से मुझे चौथा सबक मिला, और ये मैंने बहुत बांधा है अपनी जिंदगी में। व्हाई आर यू स्टॉपिंग योरसेल्फ, अपने आगे खुद से हर्डल क्यों लगा रहे हो, मतलब व्हाई आर यू स्टॉपिंग योरसेल्फ ना। ठीक है आगे नहीं हो सकेगा, कोई बात नहीं, कोई और रास्ता मिलेगा, मगर खुद से ही बाउंड्री लगा दी तो आपने अपॉर्चुनिटी तो ट्राई नहीं की ना, दरवाजा आपने कभी खोला ही नहीं, खोले तो सही दरवाजा, फिर ना हो वापस आ जाए। तो मैं आई डिड ट्राई, और मेरी इमिग्रेशन हो गई, और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट को बताया, और फिर मुझे बहुत सुनने को खैर मिली, लेकिन फिर मैं चली गई। और पिछले 7 साल मैंने आना जाना करते कराते किसी तरह से वो इमिग्रेशन भी भुगती है। आप सोचे कहाँ मुझे वो सॉफ्टवेयर हाउस जाने की परमिशन नहीं थी, कहाँ मैंने कनाडा में अकेले गुजारा अपना टाइम, बट आई डिड इट। तो वो देखिए आप लाइफ में ना चेंज बहुत आता है जिंदगी के अंदर, वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये मैंने सीखा। जो पहले के हालात थे वो बाद में नहीं रहेंगे। नेवर स्टॉप योरसेल्फ, नेवर क्लोज डोर्स ऑन योरसेल्फ, ओपन अप न्यू डोर्स, क्रिएट न्यू डोर्स। आई केम बैक, आई क्लोज द सॉफ्टवेयर हाउस बिकॉज मैं कनाडा चली गई, वापस आई, पीएचडी में एनरोल कर लिया था मैंने, वो खत्म किया, और उसके बाद फिर मैंने अपना एक नई कंपनी स्टार्ट कर ली। मैंने कहा चलो यार अब कुछ और करते हैं, अब मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में काम कर रही हूँ। सो आई हैवंट रियली स्टिक टू एनी वन, आई हैव ट्राइड टू एग्जॉस्ट, जो पॉसिबिलिटी मुझे नजर आए ना उसमें कुछ करना चाहिए, फारिग नहीं बैठना चाहिए, या एनहांस करो अपने आप को, या कोई हॉबी तलाश करो, या कोई रेलेवेंट हो जिंदगी के अंदर, फारिग नहीं बैठो, एक डोमेन में स्टक होके ना बैठ जाओ। सो दिस इज लाइक व्हाट आई हैव लाइक यू नो गॉन थ्रू, और मैंने ये जो 4 सबक सीखे ये मैं बहुत फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। अब चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए, पहला चैलेंज घर से स्टार्ट होता है, बाकी जो चैलेंज है ना, अच्छा निदा वाकिफ है मैं बड़ी मर्दमार टाइप की इंसान हूँ। अच्छा गजल भी वैसे तो ऐसी ही है बिल्कुल, तो बोल नहीं रही लेकिन ना हम लोग बड़े मर्दमार टाइप है। मर्दमार ऐसे हैं कि मुझे पता नहीं था ये सब बताना है यहाँ पे। I like to be very casual and when I speak to these like you know जो हमारे साथ के लोग हैं, तो नहीं मैडम यहाँ पे आप सब बता सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अपनी पर्सनालिटीज बतानी पड़ेंगी अच्छा तो मेरा जो निदा बहुत अच्छे से जानती है कि मैंने ना कभी वो जो हर्डल ये होता है कि कोई हमें रोक रहा है, हमारी प्रमोशन रोक रहा है, मैंने उसको कभी भी इसलिए ऐसे नहीं लिया कि ये जेंडर में आ रहा है, कभी भी ऐसे नहीं लिया, मेरे किसी वहमो गुमान में कभी भी ये चीज नहीं रही। मैंने इसको हमेशा ये लिया कि ये इस वक्त राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है और मुझे स्ट्रगल करनी है, तो मैंने हमेशा ये वाला एस्पेक्ट रखा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हमेशा अपने जहन में ये रखोगे ना, और मैंने ये अतराफ में देखा कि हर दफा ये कहना कि ना देखो औरत थी मैं, इस वजह से मेरा नहीं काम हुआ, ये ना आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करता रहता है। इवेंचुअली यू सी दिस ओनली पर्सपेक्टिव, कहीं कोई काम नहीं हुआ मैं औरत थी, आप हमेशा यही सोचते रहते हो। तो मैंने कभी ये रखा ही नहीं पैरामीटर। तो मुझसे लोगों ने कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं प्रमोशन हो रहा है, तो मैं कहा दैट्स ओके, आई विल प्रूव कि मैं हूँ वर्दी। तो हो ही गया। आई मीन एवरीथिंग हैज अ वे। आई बिकेम एन एचओडी इन इकरा में, ससैयद में नहीं बनी, मैं इकरा में चली गई, वहां बन गई मैं एचओडी। सो डॉक्टर गजल सिंडिकेट में रही हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत ही कोई क्या कहते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस समझा जाता है अगर इफ यू आर इन हाईएस्ट स्टैचुरी कंसिडर की जाती है कराची यूनिवर्सिटी की, और इट्स अ प्रेस्टिजियस ऑनर कि आप सिंडिकेट के मेंबर बने। और ये जीती है इलेक्शन में, इनके इलेक्शन होते हैं और उसमें ये जीती हैं और ये सिंडिकेट के मेंबर रही। फिर इन्होंने मेरा ख्याल से शायद ये बीएसए टाइप के रोज स्टूडेंट अफेयर्स में भी रही, और अब भी ये कोई पोजीशन होल्ड कर रही है, बता नहीं रही है I think Dr. Fazil, you should share. मैं मना, आप अभी जो बात कर रही थी ना जेंडर के हवाले से, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रीब्यूट ये करूंगी कि
गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बड़ा फर्क है। हम्म, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमें बाज दफा ये चीज नजर आती है कि हम जेंडर इनइक्वालिटी का शिकार होते हैं। ओके, But not always, but particularly देखिए, syndicate का इलेक्शन जैसे आपने कहा, या डिपार्टमेंट का HOD बनना, वहां पे इनइक्वालिटी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि these are all based on experience. So if somebody as a female have a good experience और उसकी सीनियोरिटी है तो वो HOD बन जाएगा। लेकिन जहां पर आपको एडवाइजरी बॉडी सेलेक्ट करनी होती है, जहां पर आपको कोई ऐसा रोल देना होता है किसी को कि जो कि आप समझें, यानी कि बड़ा प्रेस्टिजियस किस्म का रोल है और जो कि बड़ा आपकी सीवी में उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, वहां पर हमें ये चीज देखने में आता है कि डिफरेंट आई ग्लास हैज बीन यूज्ड नंबर ऑफ टाइम्स, एंड इट इज जनरली आई फाइंड इन गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर फिर ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं और CSS में अपेयर होते हैं, और जब मैं वहां से भी इनसाइड लेती हूँ चीजों की, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल जो है, क्योंकि जब आप किसी को कोई काम डेजिग्नेट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे क्राइटेरियाज है उसको वो काम डेजिग्नेट करने के, और उसमें से एक क्राइटेरिया ये है कि जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, कि आप जो है वो आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अवेलेबिलिटी इस तरह से कि जिस तरह वुमेन के हवाले से हम ये समझते हैं, या हम बहुत ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं देते कि जी इनके तो अपने घरेलू मामलात बड़े होंगे, इनको बच्चों को टाइम देना है, पेरेंट्स को टाइम देना है, घर को देखना है। तो यहाँ पर जाके ना थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी पर्सपेक्टिव पे, किसी किसी जगह पर हमें ये चीज फेस करनी पड़ती है, बट नॉट ऑलवेज। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो सिनारियो है वो बड़ा मुख्तलिफ है, और कॉर्पोरेट के साथ साथ अगर मैं एजुकेशन में भी प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो वहां पर भी इतना ज्यादा जेंडर के हवाले से चीजें नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तमाम चीजें हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको ये सेकंड करूंगी कि इवन इन द प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा है, लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर हमेशा अवेलेबिलिटी होती है, और हमने भुगता है ये बातें। एज आई सेड कि ये सब चीजें फेस हुई हैं, रीजन बीइंग क्योंकि वही अवेलेबिलिटी इज मेजर रोल, कि अगर कोई सीनियोरिटी में है ऑफिसर लेडी और अगर HOD के लिए आना है तो हमेशा मुंतखब नहीं किया जाएगा, या उसमें हर्डल होगी क्योंकि आप इतना टाइम नहीं दे सकेंगे। तो अच्छा, ये बाहर, मैंने चूंकि बाहर भी काम करने का इत्तेफाक हो गया, बाहर ये नहीं होता। बाहर जो टाइम है वो टाइम है, ये नहीं होगा कि आप वर्किंग आवर्स आपके कोई अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो चूंकि वहां पे जो स्पैन है वो स्पैन 9 to 5 है, 9 to 5 में मर्द भी काम कर रहा है, 9 to 5 में औरत भी काम कर रही है। ना 5 के बाद मर्द ने काम करना है, ना 5 के बाद औरत ने काम करना है, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी हो या कोई तकाजा हो, तो दोनों ही भी नहीं काम करते ना। तो इसलिए वहां मैंने नहीं देखा कि वहां पे इस तरह की चीजें आ रही हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोई जाने का टाइम तो है नहीं, देयर इज नो, जो अभी वर्क बैलेंस की फिर बात आएगी, कि इतने लेट वर्किंग आवर्स करते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ वुमेन टू होल्ड दैट। ऑब्वियसली वो घर भी जाना है, और मैन की नीड हमेशा बाहर की तरफ ज्यादा होती है। हमने अपने पेरेंट को भी देखा, वालिद साहब को भी देखा कि वो घर में अपना काम खत्म करके आते थे, और आके जाहिर है वो फिर थके हुए आते थे, वो अपने रेस्ट पोजीशन पे होते थे। तो वो एक जो टिपिकल ये एक सिनेरियो रहता है, मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड में ऐसा ही होता है। तो इसलिए विमेन की जिम्मेदारी ये होती है कि भाई उन्होंने घर को टेक केयर करनी है। अब वो उसमें फ्रस्ट्रेट होके करें, अच्छे से करें, और उसमें वो झगड़ा करके करें कि भाई दोनों ही बात कर रहे हैं। हाँ, इस पे मैं एक चीज कंट्रीब्यूट करती हूँ। आपने जो बाहर के और यहाँ के चीज को कनेक्ट किया, आई होप निदा मैं आपका कोई फॉर्मेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मैं नो मैम, बहुत मजा आ रहा है बल्कि आपकी बात सुनने में, और बहुत सारी जो हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स थे, वो काफी अच्छे से आप दोनों क्लियर कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। थैंक यू। जो मोना आपने बात की ना, जिस तरह यहाँ और जिस तरह आपने कहा कि बाहर का भी आपका एक्सपोजर है, उसमें मैं एक आपको और एंगल डिस्कस करूंगी, जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का भी बड़ा फर्क होता है। क्योंकि बाहर जो लोग हैं वो तो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ they are working and when they are coming back to their home, so they are equally participating into the house chores also. तो उस पे कोई एक स्टिग्मा या जिम्मेदारी वाली चीज नहीं है कि ये शख्स इस चीज का जिम्मेदार है।
लेकिन पाकिस्तान के कल्चर में और पर्टिकुलरली जॉइंट फैमिलीज के कल्चर में अगर हम बाहर से घर आ रहे हैं तो हमारे जहन पे ये सवाल है कि जी हमने अभी जाकर जो भी केयर गिवर वाली हमारी एक्टिविटी है, बच्चे हैं, किचन है, व्हाटएवर, या पेरेंट्स हैं, हम उसकी जिम्मेदार हैं, हमने उसको टेक केयर करना है। तो वहां पर जो जिम्मेदारी है वो फिर दोनों की है। तो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिलीज जो हैं वो भी इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अच्छा, बाज़ दफा ब्लेसिंग भी होती है, डू नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। जॉइंट फैमिली जो है वो हर दफा नेगेटिव नहीं है, बड़ी पॉजिटिव भी है कि जी आप बाज़ दफा आपको बड़ी आसानी हो जाती है कि जी आप अपने बच्चे छोड़ के चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास या अपने उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास। आप आपकी घर के बहुत सारे काम आपके आने से पहले हुए भी होते हैं क्योंकि आपके घर पे टेक केयर करने के लिए और लोग मौजूद हैं, बिकॉज यू हैव अ ह्यूज फैमिली। तो बाज़ दफा इसके बेनिफिट्स भी हैं लेकिन बाज़ दफा इसके डीमेरिट्स भी हैं। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये भी मैं कंट्रीब्यूट करूंगी। ये भी एक है पार्ट। और अच्छा, एक चीज मैं भी इसमें फिर अगेन ऐड करती हूँ कि मेरी भी इस तरह की हमेशा थिंकिंग रही थी, लेकिन मैंने बाहर ये विटनेस किया कि नॉट ऑलवेज इट इज सो। वो कहते तो हैं कि दे आर डिसजॉइंट फैमिलीज, एक यूनिट नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, बिकॉज दे आर लिविंग सेपरेटली, लेकिन दे आर ऑल्सो वेल कनेक्टेड। आई हैव सीन मेनी वुमेन जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी क्योंकि उनके पेरेंट इल थे। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट आर कल्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मुस्लिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जिनको हम गोरा कहते हैं, but I'm talking about the resident or the natives of those countries. तो कई ऐसे हैं। और सिमिलरली आई हैव सीन, मैं वॉक पे जाती थी, आई हैव सीन सो मेनी ग्रैंड पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बच्चे पाल रहे होते थे। तो क्योंकि वो काम करती थी तो वो फिर टेक केयर कर रहे होते थे, तो वो रहते तो सेपरेट है, और लेकिन वो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है ना एज पेरेंट वो अपने बच्चों की लेते हैं और कर रहे होते हैं, जॉब के साथ भी कर रहे होते हैं। तो वो बस ये समझ लें कि हाँ ठीक है, उन पे बाउंड्री नहीं है, लेकिन नेचुरल सोसाइटी जो है ना वो फिर भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अच्छा, एक क्वेश्चन है इधर, और वो है कि क्या सक्सेसफुल रही आप? नहीं, नॉट नेसेसरीली मैं सक्सेसफुल रही, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सक्सेस होना का मतलब यानी आपका काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको सक्सेस ही मिले। अच्छा नहीं, यहाँ पर मोना आप पहले इनसे ये पूछ लीजिए कि हाउ ही डिफाइन सक्सेस। आपने जो एक्सपीरियंस किया, देखिए सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। मैं इसी तरफ ही आ रही थी कि सक्सेस का मतलब क्या है। वो कहते हैं ना उसने, थॉमस एडिसन ने जो है वो 1001 फॉर्मूले बनाए और फिर कहीं जाके उसने बल्ब इजाद किया। बिल्कुल, वो ये कहता है कि जो मेरे 100 फॉर्मूले हैं दे आर ऑल्सो अ सक्सेस, बिकॉज इससे बल्ब इजाद नहीं होता, इससे बल्ब नहीं बनता। दैट इज आल्सो अ रिसर्च। हाइपोथेसिस अगर नल हो जाए तो रिसर्च थोड़ी खत्म होती है। एग्जैक्टली। तो सक्सेस जो है ना वो आपके अपने लिए आपकी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। तो मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ये थी कि डिड आई लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, दैट वाज माय सक्सेस, एंड आई लर्न ह्यूमंगस। I was able to teach so many things to my students because I learned the things that I did as a part of my career. जिसमें जो अपने स्टार्टअप्स थे उससे मैंने बहुत लेसन लर्न किए और वो मैंने बहुत डिलीवर किए अपने एकेडमिक्स में। तो आई इम्प्रोवाइज्ड माय एकेडमिक्स अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट। फिर सेकेंडली मुझे सोसाइटी के अंदर किस तरह चलना है, कॉर्पोरेट में कैसे चलना है, ये मुझे समझ आया। बहुत सारे नए लोग मिले, बहुत सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट मिले। जो कनाडा में मैंने पढ़ाया तो एक एथनिसिटी नहीं थी, मल्टीट्यूड ऑफ एथनिसिटीज पढ़ाई मैंने, और कई तरह के डिफरेंट वेरिएशंस आए, माइंडसेट्स आए। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एंड दैट वाज द सक्सेस। तो सक्सेस इज योर ओन परसेप्शन। मैं सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने अर्न भी बहुत करा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मगर चैलेंज ये था कि मैं सस्टेन नहीं कर पाई ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस। तो मेरी वो पर्सनल प्रायोरिटीज आ गई। और एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज इन लाइफ दे चेंज, बट प्रायोरिटीज रखनी चाहिए और उन प्रायोरिटीज के हिसाब से चलना चाहिए। तो लाइफ में चेंज होती रहती है प्रायोरिटीज। कभी आप सिंगल हैं, प्रायोरिटी कुछ और, आप डबल होंगे, प्रायोरिटी कुछ और, आपके पेरेंट बूढ़े होंगे, प्रायोरिटी कुछ और, हेल्थ क्राइसिस आएगा, प्रायोरिटी कुछ और। वो प्रायोरिटीज के साथ आपने अपनी लाइफ में अपने आप की अपॉर्चुनिटीज में क्या तलाश करना है। खुदा ना खास्ता भाई आपको कोई हेल्थ क्राइसिस हो गया तो क्या फिर बैठ जाए? नो, फाइंड अनदर वे। दुनिया खुली है और अपॉर्चुनिटीज बनती रहती हैं। यू नीड एन आई टू इन्विजन दैट। वो आंख चाहिए, और नहीं बने ना तो दरवाजा तोड़ दो, खोल दो, दीवार में exactly. be that way. So exactly.
बहुत अच्छे से डॉक्टर मोना आपने इस चीज को कवर किया है, एंड आई थिंक इससे हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी, जो आपने कहा कि मैंने चेंजेस लाई, अगर कोई चीज गलत कर रही थी या फेल हो रही थी या कोई बैरियर आ रहा था तो आपने अडेप्टेबिलिटी के साथ उसको कैसे चेंज करना है, क्या क्या नई पॉसिबिलिटीज लानी है। वो जो आपका विजन था ना, वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो विजन बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपको प्रोलॉन्ग सक्सेस चाहिए, और जो आपने बात की दूसरी कि सक्सेस की जो डेफिनेशन है ऑब्वियसली वो आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से भी चेंज होती है, मुझे ऐसा लगता है। लाइक जैसे मैम ने कहा कि जब हम सिंगल होते हैं तब हमारे लिए सक्सेस का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस वक्त तो हमारा एक, मैं कह सकती हूँ, बच्चा दिमाग होता है। हम अपनी ग्रेजुएशन करके निकले हैं और हमें लगता है कि बस सब बैठे हुए हैं हमारी सीवी लेके और हम बस फौरन लग जाएंगे और मैं ये कर लूंगी और मैं वो कर लूंगी। एंड देन वी रियलाइज आफ्टर टाइम और चीजों के बाद के प्रायोरिटीज और सक्सेस ये दोनों आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड है, स्पेशली फॉर वुमेन। क्योंकि हमारे लिए ना हमारी सोसाइटी में, अगर हम पर्टिकुलरली सोसाइटी की बात करें, डॉक्टर मोना एंड डॉक्टर फजल, आई थिंक आप लोगों ने भी चीज फेस की होगी कि मर्दों के लिए प्रायोरिटीज का क्राइटेरिया, प्रायोरिटीज की लिस्ट बहुत लिमिटेड है। बट हमें बीइंग अ वुमेन, हमारी भी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट होती है। लाइक हमारी प्रायोरिटी हमारे पेरेंट्स की हेल्थ भी है, हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे की हेल्थ भी है, हमारी प्रायोरिटी हमारे घर की सफाई भी है, हमारी प्रायोरिटी ये भी है कि हमारे घर में सबको अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारी प्रायोरिटी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो उसके साथ जो हमारा सक्सेस का जो एक क्राइटेरिया, आई थिंक वो भी चेंज होता रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके रोल्स ऐड होते हैं, दैट डजंट मीन कि आप पीछे रह जाओगे या आप सक्सेसफुल नहीं कहलाओगे। आई थिंक रोल्स ऐड होने के साथ साथ आपकी सक्सेस का क्राइटेरिया और आपकी सक्सेस की पोजीशन भी चेंज होती है। जैसे मी बीइंग अ वाइफ, मेरे लिए सक्सेस का क्राइटेरिया उस वक्त कुछ और था, लेकिन मी बीइंग अ डॉक्टर उस वक्त सक्सेस का क्राइटेरिया कुछ और था। तो एडिशन जो है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी नया एडिशन आपके साथ, आपकी जात के साथ होता है तो आपके अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। इसको हम, हाँ, इसको हम थोड़ा सा और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैडम मोना एंड मैडम गजल, मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे लिए अगर अपॉर्चुनिटीज हैं फीमेल्स के लिए, तो वो क्या सिर्फ करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं? हमारे लिए दूसरी जो जिंदगी में दूसरी चीजें होती हैं उनमें कितनी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और खवातीन उनको कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे लिए ये वाली अपॉर्चुनिटी भी है, घर बैठी हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैं इसको ढूंढ रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही तो मैं, हाउ कैन आई सीज देम? मैडम मोना। देखें, मेरा मानना ये है कि इंसान को ना मुतहरिक रहना चाहिए। ठीक है, इफ यू आर सिटिंग एट होम, लेट्स सपोज, व्हाई आर यू आइडल? आइडियल का मतलब ये नहीं है कि आपके घर के कोई काम नहीं है, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर होम मेकर, राइट? बट इफ यू आर अ होम मेकर, व्हाई नॉट एनहांस योर स्किल इन बीइंग अ होम मेकर? Why not enhance your skills so that you can educate your children better? Exactly. Why not enhance your skill to fulfill some hobby that you had और आपको कभी टाइम नहीं मिला था उसको काम करने का? आपकी कोई डायरेक्शन कभी थी कि यार मुझे ना राइटिंग करने का बड़ा शौक है, तो किसने रोका? करें। तो ना ये यानी होम मेकर, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं हमेशा बोलती रही कि इंजीनियरिंग करी और फिर घर में बैठी, फाइन, दैट्स ओके, आपकी लाइफ में चेंज आता है, जरूरी नहीं है हर एक के सर्कमस्टांसेस सेम हो, लेकिन फिर घर में बैठ के ना रेलेवेंसी खत्म कर दी। तो रेलेवेंट होने का मतलब ये है कि दुनिया में हो क्या रहा है भाई, यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन एवरी डोमेन। इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, दुनिया किस सिमत में जा रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हो रही हैं, मैं वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्यों नहीं सीख सकती? एक कंप्यूटर चाहिए मुझे, है मेरे पास, मोबाइल चाहिए, है मेरे पास, तो भाई व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू नॉट लर्न द डिफरेंट गैजेट्स, टू नॉट लर्न द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स? अपने लिए ही लर्न कर लें। तो यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप अपनी जिंदगी में मुतहरिक रहें, चाहे आप कोई काम भी कर रहे हो। मेरी एक फ्रेंड है, उसको बहुत शौक है खाना पकाने का, शी इज अ होम मेकर, राइट? सो शी डिसाइडेड कि यार मैं ना जब फारिग टाइम होता है वो कहीं कोई एनरोल कर लेती है अपने आप को किसी जगह पे खाने पकाने के लिए। व्हाई? शी लव्स इट। अच्छा, वो किसको फैसिलिटेट करने के लिए सब कर रही है? अपने आप को तो वो खुश हो रही है ये करके, बिकॉज उसकी हॉबी है, लेकिन शी एंजॉयज देन कुकिंग फूड फॉर द फैमिली। ग्रेट।
enjoys cooking. तो वो फैमिली खुश होती है, वो तो शी इज लाइक यार देखो आज मेरा खाना बड़ा जबरदस्त रहा ना, सबने बहुत लाइक किया, तो शी इज हैप्पी ऑन हर सेल्फ. तो वो करियर वुमेन नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो अपने आप को एनहांस रख रही है. ठीक है. एक और चीज मैंने बहुत नोट करी है और मैं हमेशा बोलती हूँ, घर में अगर कोई बैठा है तो वो घर से बिल्कुल ही डिटैच हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हालिया हमारी विसिनिटी में, हमारे क्लोज बाय में एक डेथ हुई है, और मैं हवाला इसलिए देना चाहूंगी मैं कि आई वाज टॉकिंग टू द पर्सन जिसकी यहाँ हुई है, और उसमें खातून जो हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हुई, तो वो हालांकि वर्किंग हैं वुमेन, मगर शी इज सो डिपेंडेंट, वॉज सो डिपेंडेंट अपॉन हर हस्बैंड के ना अकाउंट खोलना आता है, ना बैंक ऑपरेट करना आता है, ना फोन का बिल भरना आता है. तो देखें ये चीजें जो है ना, यानी कि आपकी लाइफ को चालू रखने के जो जितने भी मराइल हैं, जितनी भी चीजें हैं, सांस लेने और खाने और पीने और इनके अलावा, वो सब आने चाहिए. तो ये स्किल, ये लाइफ स्किल कहलाती है ना, अब ये लाइफ स्किल का पार्ट बन गई है. तो ये आना चाहिए. इसमें आप अपने आप को खुद रोक रहे हैं. नोबडी एल्स इज स्टॉपिंग यू बट योरसेल्फ. हमारे वक्त में, ये हमसे पहले अगर हमारे माँ बाप के वक्त में जाएंगे ना, तो वहां पे तो थी नहीं ना, हमारे कौन सा इंटरनेट थे और कौन सा कंप्यूटर था, देयर वाज नथिंग. तो बाहर नहीं निकलना होता था, तो समझ आती थी कि भाई हमारे पेरेंट को नहीं पता बैंक कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि बाहर नहीं निकलते थे ज्यादा. हम तो यार दुनिया हमारे मोबाइल के ऊपर तो फिर रही है. तो इंस्टेड के आप रीलें देखें, रीलें में बहुत अच्छी रीलें भी होती हैं, आप वो अच्छी रीलें देखें, वो आपको एजुकेट करेंगी. एग्जैक्टली. कि करियर अपॉर्चुनिटीज के अलावा भी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो आपने बात की ना मैडम मोना, पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज, आई थिंक ये हम खुद ही नहीं ढूंढते, हम खुद ही बैठ जाते हैं. और ये मैंने भी देखा है हमारे साथ, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा कि हमारे साथ बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं, हम लोग सब पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छा करियर चलाती हैं, लेकिन जैसे उनकी शादी होती है तो वे एकदम बैठ जाती हैं और बिल्कुल अपने जो हस्बैंड के ऊपर देखना शुरू कर देती हैं. आई थिंक वो कहीं ना कहीं सेल्फ जो उनका एक पर्सनैलिटी है, उनकी पर्सनैलिटी को वो खो करना, वो एक रोल अपना लेती हैं वाइफ. बिल्कुल, दैट्स इट. वो वाइफ बन जाती हैं और फिर वो मदर्स बन जाती हैं. वो जो उनका एक खुद की पर्सनैलिटी होती है ना, वो कहीं खो जाती है. एंड दैट, अब मुझे लगता है कि वही एक ट्रिगिंग पॉइंट है जो हमें रोकता है कि हम कुछ भी नया सीखें या हम कुछ भी नया करें और अपने लिए बेटर करें. और मैडम मुना और मैडम गजल, आप दोनों आप इतनी इंस्पिरेशनल हैं, क्योंकि जैसे मैडम ने भी बताया कि अगर एक चीज नहीं हो रही है तो दैट डजंट मीन कि आप छोड़ छाड़ के बैठ जाओ. मेरे ख्याल से तो हर तरीके से जो है औरतें अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं. और अब तो वाकई वो दौर है कि सब कुछ हो सकता है. देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज फॉर एवरीवन. यस एमन, मैं मोना आप अभी जो बात कर रही थी, मैं वही सोच रही थी. आपने तो उन खवातीन की इस वक्त बात की हमसे जो कि मतलब ऑन जॉब नहीं है, और उनके जैसे आपने बताया कि जी डेथ हो गई तो उनको कुछ नहीं आता करना बिकॉज शी वाज अ हाउसवाइफ. मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि वो खवातीन जो कि कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का नहीं पता. दे आर ओनली गो एंड वर्क, दैट्स इट. अब वो एक अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है. तो जो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करती हूँ, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ और आज भी जिक्र कर रही हूँ इस बात का. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, जो कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट देती है, उसका मतलब सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि ये भी आपके पास इतनी एजुकेशन, इतना विजन होना चाहिए कि फिर उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है. तो एम्पावरमेंट का, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आधा होता है अगर हम कहें कि जी औरत जो है वो कमाए या घर से बाहर निकले और जॉब करे, ये आधी बात है. क्योंकि कमा तो कोई भी सकता है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट इनकम्प्लीट है जब तक आप अपने फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं लेते. और फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब ये है कि नॉट ओनली अर्निंग बट ऑल्सो हाउ यू इन्वेस्ट, वेयर यू इन्वेस्ट, व्हाट यू डू विद योर अर्निंग. तो एम्पावरमेंट जो है वो अधूरी रह जाती है, सिर्फ कमाना नहीं होता. और बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं कि जहाँ पे खवातीन, जो घरेलू खवातीन है वो तो हैं, लेकिन जो जॉब कर रही हैं उनको भी नहीं पता कि वो क्या करें अपने उस पैसे से जो कि उसको एम्पावर कर रहा है उनको. वो फिर सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पा रही है खवातीन. बहुत अच्छी बात मैडम आपने की. वाकई हम लोग जो हैं वो समझ लेते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं, हमने कोई जॉब हासिल कर ली है तो वो हम बहुत एम्पावर्ड हो गए. बहुत अच्छी तरीके से आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया. आई थिंक
इसी पॉइंट पर हम अपने डिस्कशन को एंड करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, आई थिंक इस पर तो जितनी देर बैठ के बात की जाए वो कमी लगेगी, और इतनी सारी चीजें हैं ना इस टॉपिक के अंदर कि आई थिंक बल्कि एज अ को एडवाइजर ऑफ IEEE मैं तो ये समझती हूँ कि हमें इस सेशन को, इसकी एपिसोड्स करनी चाहिए, बिकॉज सच इंसाइटफुल टॉक्स जो आप कर रहे हैं हमारे साथ, आप दोनों, क्योंकि आपका इतना जो वास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी जो आपकी विजन्स है चीजों को लेकर, आई थिंक वो इस छोटे से टाइम लिमिट में तो उसको कवर किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, मैं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर जल्दी से उसको आंसर कर दे, वरना कहेंगे कि आपने आंसर नहीं किया। अच्छा, ये बोल रहे हैं, एनी एडवाइस यू वांट टू शेयर फॉर वुमेन कमिंग फ्रॉम नॉट सो सपोर्टिव फैमिलीज? नॉट सो सपोर्टिव फैमिलीज का मतलब ये है कि आपको कोई काम नहीं करने दे रहा, ठीक है, क्या नहीं करने दे रहा, द पॉइंट इज क्या नहीं करने दे रहा। तो अगर वो आपको काम नहीं करने दे रहा, यानी घर से बाहर निकल के आपको वो करियर नहीं बनाने दे रहा, तो घर के अंदर रह के क्या कर सकते हैं आप? तो अभी मैंने जो बात करी थी कि अपने ऊपर सबसे पहले तो सेल्फ हैप्पीनेस को तलाश करें ना, पहली चीज कि यार आप किस चीज में खुश होते हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि रिग्रेट ना करें, भाई नहीं कर पा रहे ना, क्या कर सकते हैं ये सोचें। व्हाट इज इट, आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन जिन्होंने कोई अपने बच्चे ग्रो करने के बाद करियर में जंप किया, क्योंकि उन्हें टाइम मिला तो उन्होंने कहा लाओ करते हैं। तो देखिए, दुनिया एक जैसी नहीं है, आज नहीं मिल रहा ना मौका, कल मिलेगा, मगर कल लेट होगा। अगर आपने आज तैयारी नहीं कर रहे तो तैयारी कर लें उसकी, ठीक है। तो दुनिया में मौके आपको मिलेंगे, और अपने आप को एजुकेट करने के मौके बहुत मिलेंगे। कोई कोर्सेज करते रहें, तो अपने आप को एजुकेट करते रहें। एक टाइम ऐसा होगा जब आपकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी, एंड नाउ यू विल फील कि अच्छा अब मैं कुछ इनपुट डाल सकती हूँ। और दूसरी चीज, दिस इज नॉट द टर्म कि अगर आपने सपोर्टिव फैमिलीज नहीं है तो आप उसको घुट के रहते रहें, घुट के ना रहें, कोई और अडेप्ट करें, कोई और काम करें। जरूरी नहीं है करियर ही करें, कोई और भी कर सकते हैं, कुछ और भी ढूंढ सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं। आपको मोना से बात करिए, वेट फॉर द राइट टाइम वाली बात है यहाँ पे कि आप यू हिट द नेल, जब आपको समझ आए कि हाँ आप चीजें जो हैं वो मेरे मुताबिक हो गई हैं। क्योंकि एक तरह का मिजाज जो है, हमने भी अपने बुजुर्गों से बहुत सारे जो है वो प्रेशर्स लिए, सब कुछ लिए, लेकिन एक जैसा मिजाज नहीं रहता। अभी नॉन सपोर्टिव फैमिलीज में आपकी जो है वो बायोलॉजिकल फैमिलीज भी हो सकती हैं, और या वो भी हो सकती हैं जो कि आप शादी के बाद आपकी दूसरी फैमिली बनती है। तो आप यू वेट फॉर द राइट टाइम, और आप जब तक जो है वो अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें, ताकि आप जो है वो सही टाइम पर जो है वो हिट करें। अपने बच्चों के लिए तैयारी कर सकते हैं। लाइक हु इज स्टॉपिंग यू, एजुकेट योरसेल्फ फॉर योर किड्स। एक बहुत अजीब बात है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई आप अपनी एजुकेशन को करियर से क्यों मिला रहे हैं? एजुकेशन इज फॉर यू, दैट्स इट। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक यही वो पॉइंटर्स हैं जहां पर हम गलती करते हैं, हम चीजों को बहुत गलत नजरिए से देखते हैं और उसका फायदा नहीं उठा पाते। जैसे मैडम मोना ने कहा ना, और मैडम गजल ने भी कहा कि हम टाइम के राइट होने का इंतजार क्यों नहीं करते, और उसी टाइम को राइट करने की कोशिश क्यों नहीं करते अपने लिए। क्योंकि हर वक्त गलत नहीं हो सकता, हम हर दफा चीजों पर इल्जाम नहीं डाल सकते ना कि मैंने ये नहीं किया क्योंकि ये ऐसा नहीं था और वो मैंने ऐसे नहीं किया। आई थिंक हमें जो पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसको हम कहते हैं, हमें उस पे काम करना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और है, मेरे ख्याल से लास्ट वन है ये गजल आपके लिए है। व्हाट पॉलिसीज और कल्चरल शिफ्ट्स आर नीडेड टू क्रिएट मोर पॉसिबिलिटीज फॉर वुमेन? आई थिंक ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हैं कि जी आपका कल्चरल शिफ्ट्स और पॉलिसीज। बिल्कुल, हम अगर हम HR के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हाँ, हमें वक्त के साथ साथ जो है वो नई किस्म की पॉलिसीज जो हैं वो बनानी पड़ेंगी वर्किंग वुमेन के लिए, ताकि वो हमें ये देखना है ना कि जी एक खातून जो है वो वर्क प्लेस पे क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रही है, तो उसको क्या हर्डल्स हैं उसके। तो जब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास डे केयर का है तो हम अपने पेरेंट्स के हवाले से भी या अपने कुछ जो भी आपकी जिम्मेदारी है उस हवाले से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को, इस तरह की पॉलिसीज बना सकते हैं। तो डे केयर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मोना, आपकी फील्ड में जिस तरह आप जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह हैं जिसमें आप इंटरनेशनल या कुछ आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, फ्रीलांसिंग अब बहुत हो गई है।
हाँ यस, फ्रीलांसिंग से तो बहुत ज्यादा आई थिंक मैं तो बहुत सारी विमेन अपनी बहुत students को- ज्यादा इसमें इन्वॉल्व एग्जैक्टली बहुत सारी मेरी फीमेल स्टूडेंट्स, और जब मैंने भी अपना इनफैक्ट करियर शुरू किया था तो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था, एंड आई थिंक फ्रीलांसिंग की जो मार्केट है आफ्टर कोविड तो वो बहुत ज्यादा इंपावर कर रही है इंडिविजुअल्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेसिकली हमारी फील्ड के, तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली और जो भी स्किल आपको आती है ना, अच्छा ये जो पॉलिसीज कह रहे हैं ना कि एक और अच्छी चीज जो मैंने बाहर देखी, सेकंड करियर एक कॉन्सेप्ट है बाहर ना, और ये पूरा बाकायदा स्लोगन है, और सेकंड करियर ये है कि जब आपको लगे कि आप अपने करियर से खुश नहीं है, चेंज कर सकते हैं। एंड आई नो सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो मुझसे बहुत बड़े बड़े थे, जो कि कोई और काम कर रहे थे, केमिकल इंजीनियर थे, और वो थक गए, वो कहने लगे भाई मैं नहीं कर रहा, तो दे नाउ वांटेड टू प्रोग्राम, उनको इंटरेस्ट था प्रोग्रामिंग में, वो प्रोग्रामिंग में जंप कर गए कि मैं ये देख करना चाहता हूँ। ये जो पॉलिसी है ना कि एजुकेशन कहीं से भी और कभी भी शुरू की जा सकती है, एग्जैक्टली उसके लिए कोई डिग्री का होना जरूरी नहीं है। जो मैंने अपने शुरू में बोला था कि आई वांटेड टू डू पीएचडी इन एजुकेशन, मैंने इतनी कोशिश करी तो मुझे सब जगह से कहा कि नहीं, एक प्रोविजन ही नहीं है कि आप अपनी फील्ड ऐसे चेंज कर सके। बाहर है, बाहर आप इंजीनियर बने और फिर आप जाके डॉक्टर बन जाए, you can start your life anywhere वाली बात। start your life anywhere. So many people like fed up of their monotonous life and they just decide to change their career. अब कुछ there are no limitations ना, आई थिंक कि आजकल की दुनिया में तो मुझे लगता है कि लिमिटेशंस है ही नहीं। अगर आप अपने लिए पॉसिबिलिटी ढूंढना चाहते हो ना तो आपको हर चीज मिल जाएगी। वो फिर मुझे लगता है लेजीनेस वाली चीज हो गई कि आपने हर चीज डाल दी, दूसरे पे डाल दी कि भाई अगर मैं पॉलिसीज की बात कर रही हूँ कि ये पॉलिसी हमारे यहाँ एजुकेशन में भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आना चाहिए ऑन एचईसी लेवल। एचईसी प्रमोट ही नहीं करता है कि आप इंटर फील्ड चेंज कर लें, क्योंकि चेंजेस तो हर जगह हो सकता है ना। इंजीनियरिंग करी है, मैं कहीं और जाना चाहूँ। बता दूं ये पॉलिसी आ गई है एचईसी की, थोड़ा सा लेट आई है, इसी साल जो है ये आई है। हमने अभी जो एमफिल और पीएचडी में एडमिशन दिए हैं वो इसी बेस पर दिए, इंटर डिपार्टमेंट। लेकिन अगर अभी भी ये फुल फ्लैश नहीं है, क्योंकि अभी ये डिलेमा अभी करंट बैच में हम पीएचडी एनरोल करते वक्त फेस कर रहे हैं कि उसके अंदर अगर कंप्यूटर साइंसेस का नहीं किया हुआ सपोज, तो उसमें सिर्फ चंद फील्ड लिख दी हैं जो कि इनटेक कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट चलें, कोई चीज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग होना जरूरी है। स्टूडेंट्स आए हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आए जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं, हम उनको डेफिशिएंसी कोर्सेज कराएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया का यही फॉर्मूला है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी तो अब आप उसी में करियर आप आगे लेके जाएं। बिल्कुल किसी कोर्स करें और आप आगे रिसर्च करें। ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक कि वाकई ये जो मैडम गजल ने बात बताई है बहुत बड़ी हमारे लिए भी गुड न्यूज है, हमें पता नहीं था। इससे विमेन को बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिकॉज आप अपने लिए नई कैरियर चूज कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे पाथ्स होंगे। बिल्कुल, और अब ग्रेजुएट लेवल पर पता भी नहीं होता हमको ना, जब हम होते हैं घुस जाते हैं बस कहीं। माइक्रोबायोलॉजी में आप जाके देखें कितनी फीमेल जो हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में, 90% डिपार्टमेंट में फीमेल है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में आगे चल के वो जॉब करना हर एक को है भी नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं। एग्जैक्टली। मैडम इस सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। एज वी कंक्लूड this thought-provoking session, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, Dr. Mona Kanwal and Dr. Ghazal Khwaja, for sharing their insights and experiences with us today. A big thank you to our organizing team at IEEE SSUTY for making this event possible, and to all our attendees for being a part of this important conversation. We hope this discussion has inspired you to explore new opportunities, breaking barriers, and actively participate in personal and professional growth. Stay connected with us for more enlightening sessions in the Ramzan Nexus Series 2.0. Thank you so much, Dr. Mona and Dr. Ghazal. Thank you.